A very good morning to all of you. How are you all? Doing good? Okay. And how was your exams? Nice. Okay. So, did you know what we are going to learn today? Yes, that is simple tenses. Did you know how many tenses we have? Yes, there are three types of tenses. One is past tense, present tense, and the last one is future tense. So these all things we are going to learn in today's lecture. Okay? So shall we start? Okay, let's go. So tenses, present tense, past tense, and future tense. So the action is the action which are done oftenly, usually, sometime और every day. ठीक है, कोई एक्शन है हमारा जो हम कभी कभी जो एक्शन कभी हो रहा है मीन्स समटाइम्स कोई एक्शन है होते हैं जो हम रोज करते हैं राइट वी आर डूइंग एवरी डे. ठीक है, और कोई कोई एक्शन होता है जो वीक में एक दिन या 2 दिन होता है राइट. सो these all action come into in present tense. ठीक है, and the last one is general truth. So what is general truth? जिस ट्रूथ को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो एक जनरल ट्रूथ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल द अर्थ गोज अराउंड द सन, राइट. द अर्थ हैज राउंड शेप. द सन राइज इन द ईस्ट, right? Birds fly, baby cry, right? So these are the examples of general truth. ठीक है, सन कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से. ठीक है, अर्थ का शेप कैसा है? इट्स अ राउंड शेप. ओके, और सन के आसपास कौन घूमता है? अर्थ, राइट. द अर्थ गोज अराउंड द सन. ओके, so these are the general truth, right? So now come to the past tense. The simple past tense action that have already taken place in the past. कोई actions जो हम पहले से कर चुके हैं, right? जैसे हमने कल किया था. Like for example, if we say, I missed the class last week, right? So this is the example. And some other example is they lived in the Spain. They lived in the Spain. He brought a new house last month. ठीक है, तो आप ये एक्शन देख रहे होगे कब कब हुए हैं, जैसे लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट वीक. सो ये जो एक्शंस हैं वो पहले से ही हो चुके हैं, राइट. सो दैट कम इनटू इन पास्ट टेंस. ओके, so now come to the third is future tense. We use the simple future tense for actions that will happen in the future. जो एक्शन हम फ्यूचर में करने वाले हैं, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी से माई फादर विल अप्लाई फॉर अ न्यू जॉब. ठीक है, मेरे फादर हैं वो अप्लाई करेंगे न्यू जॉब के लिए. ठीक, We will be back on Sunday. ठीक है, हम लौट आएंगे संडे को. ओके, सो वी विल बैक ऑन संडे, राइट. दे विल गो टू द स्कूल. दे विल गो टू द स्कूल. ठीक है, वो जाएंगे. सो दैट कम इन टू अ फ्यूचर टेंस. वी विल मोर डिस्कस these all other topics in next slide, right? So your concept will clear, right? So now come to the past tense. So the dog was sick. It rained. She went to the market. So these are the examples of past. ठीक है, in past में what we are using was and was use करते हैं, right? और क्या यूज करते हैं? वर. ठीक है, वी वर.
I was. ठीक है. So in past we are using these all things. ठीक है. Past में कुछ कुछ ऐसे verb होते हैं. Verb means action word. ठीक है. जो action words होते हैं that will change completely. Like for example, go. ठीक है. अगर इसको हम past में करेंगे तो that will convert into went. I went हो जाएगा. Right? So we will more discuss in next slide with the examples. Right? So present tense, the dog is sick. It rains. She goes to the market as usually. ठीक है. वो हमेशा की तरह मार्केट में जा रही हैं. Right? The dog is sick. मतलब डॉग अभी भी बीमार है. Right? The dog is sick. It's rains. Right? So now come to the future tense. The dog will be sick. ठीक है. It will rain. Okay. She will go to the market. आपने यहाँ पे फ्यूचर टेंस में देखा होगा वी आर यूजिंग will. ठीक है. जैसे हम will यूज करते हैं वैसे ही हम shall भी यूज करते हैं. ठीक है. We will see some more examples of shall and will in last slides, right? So in future tense जब हम बोल रहे होंगे, जब एक्शन हम करने वाले हैं, we will say I will, we will. ठीक है. You will. Okay? तो जहाँ पे हम will add कर रहे हैं तो that's mean it is a future tense. ठीक है. Now we will see some examples of present tense. ठीक है. जब present tense होता है तब हम verb में s, es और ies add करते हैं. Right? For example, if you see the first example, the moon shines at night. ठीक है. तो वो shines में s add करते हैं. Right? और the earth moves around the sun. ठीक है. मूव में एस ऐड कर दिया. तो ये आप वर्ब देख रहे हो. ठीक है. ये सारे जितने भी हैं दीज आर द वर्ब्स. ठीक है. मूव्स, वॉक्स, गोज, गेट्स. इसमें देख रहे हो सब में एस एस ऐड किया हुआ है. गोज में ई एस ऐड किया हुआ है. राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल ऐड एस, ई एस एंड आई ई एस. आई ई एस तब हम ऐड करते हैं जब लास्ट वाला जो वर्ड होता है, जो लेटर होता है वो वाई होता है. ठीक है. जैसे क्राई, CRY एंड क्राइज. ठीक है. वाई हट जाएगा. एट दैट टाइम वी विल ऐड IES. ओके. सो these are the examples of simple present tense in which we will add in verb S, ES and IES. Right? ES तब हम ऐड करते हैं जब लास्ट जो वर्ड होता है वो वोवल होता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे गोज लिखा है GOES. ठीक है. तो O क्या है? इट इज अ वोवल साउंड. इन दैट केस वी विल ऐड ES. राइट. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स, सम अदर टेंस. राइट. और हम इसको समझते हैं. दे स्लीप इन द afternoon. ठीक है. I could not wash the dishes. I play chess. We go to the gallery every Sunday. Right. We generally sing song all together. They speak English in USA. ठीक है. जब सेंटेंस में प्रोनाउन जो होता है, ठीक है, जैसे कि दे, आई, वी, दे. ठीक है. जब ये सब होते हैं तब वर्ब चेंज नहीं होगा. ठीक है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे होगे दे लिखा है. ठीक है. तो यहाँ पे वर्ब चेंज नहीं होगा. ठीक है. जब सेंटेंस में प्रोनाउन में, ठीक है, आई आ रहा है, यू आ रहा है, वी आ रहा है या फिर दे आ रहा है, दैट्स मीन द वर्ब विल नॉट चेंज. जो वर्ब का फॉर्म होगा
वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में आई लिखा है, वी लिखा है, दे लिखा है एंड यू, दैट्स मीन द वर्ब फॉर्म विल नॉट चेंज. Okay, now we will see other tense, that is a past tense. Example of simple past tense that are forms by adding ed. Okay, these are called regular verbs. ठीक है, इन past tense में हम verb में ed ऐड करते हैं. ठीक है, he talked loudly in class last week. Jack walked to school yesterday. He washed his car last night. Angela watched TV all night. They agreed to meet at the coffee shop. अब सभी इसमें देख रहे होंगे कि इन सभी सेंटेंसेस में वर्ब में क्या ऐड किया गया है, ईडी. राइट, सो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब. ठीक है, पास्ट टेंस में जब वर्ब में वी आर एडिंग ईडी, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. ये सब कौन से वर्ब्स हैं, ये सब हैं रेगुलर वर्ब्स. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो दीज आर द रेगुलर वर्ब्स in which we are adding ed. ठीक है, talked, walked, washed, watched and agreed, इन सब में हमने ed ऐड किया हुआ है. so that is called regular verb, right? so now come to the next slide. जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, I already told you that in first slide that some past tense, जो past टेंस होते हैं उसमें जो वर्ब होता है वो टोटली चेंज हो जाते हैं. कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं वी हैव टू चेंज, दैट विल चेंज टोटली. लाइक फॉर एग्जांपल फ्लाई. ठीक है, फ्लू लिखा है यहाँ पे. फील, फेल्ट. बीट, बिट. बीट, बिट. ब्रिंग, ब्रॉट. कम, केम. कैच, कॉट. ड्रिंक, ड्रैंक. गो, वेंट. टीच, taught. So these are the some verbs which change totally. ठीक है, यही इतने ही verb नहीं है, और भी बहुत सारी verbs हैं that will change totally, like sit, sat. ठीक है, these are the examples of past forms which change completely. present tense में fly आएगा. ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कि पास्ट टेंस में आप चेंज कीजिए, सो दैट विल चेंज इनटू फ्लू, FLEW. ओके, सो दैट इज, ये कौन से वर्ब्स होंगे, ये है इनरेगुलर वर्ब्स. कौन से वर्ब्स हैं, इट इज अ इनरेगुलर वर्ब्स विच चेंज टोटली. ठीक है, जो चेंज हो जाएंगे टोटली, दैट इज इनरेगुलर वर्ब. और जो चेंज, जिस वर्ब में ed ऐड होगा वर्ब में, दैट इज अ व्हाट, रेगुलर वर्ब. ठीक है ना, वो रेगुलर वर्ब थे, ये इनरेगुलर वर्ब है. ओके, सो नाउ सी सम मोर एग्जांपल्स. नाउ वी विल सी फ्यूचर टेंस. ओके, we use simple future tense for action that will happen in the future. ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि जो एक्शन हम फ्यूचर में करने वाले हैं, राइट, इन दैट वी विल यूज शेल एंड विल. ओके, शेल हम तब यूज करते हैं जब हम आई और वी जो प्रोनाउन है वहां से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, आई शेल, वी शेल. ठीक है, तो जब अगर दो ये प्रोनाउन होंगे सेंटेंस में, एट दैट टाइम वी विल ऐड शेल. ठीक है, और विल हम किसी भी प्रोनाउन के साथ में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, प्रोनाउन हो गया या फिर नाउन हो गया. ठीक है, विल इज यूजुअली यूज विद एनी अदर प्रोनाउन और नाउन. ठीक है, विल को हम किसी भी प्रोनाउन और नाउन के साथ में ऐड कर सकते हैं. ठीक है,
शैल हम किसके साथ ऐड करेंगे, आई और वी के साथ, ओके। और विल हम किसके साथ ऐड करेंगे, कोई भी प्रोनाउन हो गया, कोई भी नाउन हो गया, राइट। इन दैट केस वी विल ऐड विल, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास दैट, सॉरी नॉट इन प्रीवियस स्लाइड, दे विल गो टू द स्कूल, ठीक है। दे प्रोनाउन है, राइट। सो उसके साथ में हमने विल ऐड कर दिया, राइट। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर टेंस। आई और वी के साथ में ही शेल ऐड होगा, ठीक है। और विल हम किसी भी प्रोनाउन और नाउन के साथ में ऐड कर सकते हैं, राइट। पास्ट टेंस में क्या था कि हम ईडी ऐड कर रहे थे वर्ब में, राइट। व्हाट वी आर एडिंग, ईडी, सो दैट इज अ रेगुलर वर्ब, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं विच चेंज कंप्लीटली, ठीक है, जैसे कि ब्रिंग, ब्रॉट, कम, केम, ठीक है। कम का पास्ट फॉर्म क्या होगा, केम हो जाएगा, राइट। कैच का कॉट हो जाएगा। तो ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रैंक किस में आएगा, पास्ट में, ठीक है। गो का वेंट हो जाएगा, टीच का टॉट, ठीक है। सो दीज आर द सम पास्ट फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब्स, ठीक है। ये कौन से वर्ब कहलाएंगे, दैट इज अ इनरेगुलर वर्ब्स विच चेंज कंप्लीटली, ठीक है। जो एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाए दैट इज अ इनरेगुलर वर्ब, ठीक है। और जो नहीं हो, सिर्फ ईडी ऐड हो, दैट इज अ रेगुलर वर्ब, ओके। Now we will see some examples of future tense. I shall write the essay tomorrow, right. Asha will help us to decorate the room. It will rain tomorrow, right. They will leave the city soon. So मैंने यहाँ पे आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, आई और वी के साथ में व्हाट वी विल ऐड, शेल, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे हमने ऐड किया, आई शेल राइट द एसे टुमारो, राइट। आशा विल हेल्प अस टू डेकोरेट द रूम। अब यहाँ पे देख रहे होगे सभी सेंटेंसेस में शेल, विल ऐड किया गया है, दैट्स मीन इट इज अ फ्यूचर टेंसेस, ठीक है। इस सब सेंटेंसेस में हमने विल ऐड किया है, मतलब ये फ्यूचर में एक्शंस होने वाले हैं, राइट। दे विल लिव द सिटी टुमारो, सॉरी, दे विल लीव द सिटी सून, ओके। इट विल रेन टुमारो, राइट। इन सब में हमने विल और शेल ऐड किया है, दैट्स मीन इट्स अ फ्यूचर टेंस। वी यूज simple future tense for action that will happen in the future. Are you getting my point? That will happen in the future. Future में ऐड करने के लिए what we will add, will, ठीक है। और मैं कह रही हूँ पास्ट में अगर ऐड करेंगे तो we will add in verb ed as well as was and were, ठीक है, according to the sentences, right? So these are the examples. और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, what we had understand, जब I, you, we, they होगा the verb will not change, ठीक है। जो verb होगा वो change नहीं होगा। जब sentences के starting में means pronoun में अगर I, you, we, they लिखा है, that's mean the verb form will not change, ठीक है। ना एस ऐड होगा, ना ई एस, ठीक है, ना आई ई एस, ठीक है। वी डोंट हैव टू ऐड दीज ऑल थिंग्स इन द वर्ब, द वर्ब फॉर्म विल नॉट चेंज, ठीक है। आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया है कितने टाइप्स के टेंसेस हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, ओके। देन यू हैव टू प्रैक्टिस इट in your grammar book, okay. Later on I will share the answers in the book, okay. Before that we will do some practice work in this, okay. In next class
I will share some examples of and some more exercise. ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए. दैट इज फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस एंड इन सब चीज़ों का जो टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए. राइट, वी विल प्रैक्टिस इट मोर ऑन. राइट, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास. Practice it well. Right, and have a nice day. See you in next class.